वेलकम उमंग। और थैंक यू। शुरुआत करते हैं आपके बारे में, आप और आपके इनिशिएटिव के बारे में, अपने बारे में बताइए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर वर्क। Thank you. So my name is Umang Singhal, and I'm basically software engineer by profession. I passed out from NIT Allahabad in 2018, and then I worked for Swiss Bank as a software developer, and then I worked with the Airtel Payment Bank as a software developer, and then I decided to start my own. Uplifters Academy. I'm a founder of Uplifters Academy. So it's a skilling platform where we want to train the people who are graduates, who are recently graduates, or who are in a final year with our whatever we have learned so far from our industry experience. So we train them, and we also help them to connect with the startups and companies so that they can get jobs. So in India, there are so many people who are doing graduation in tech and non-tech as well, but the quality of education is really the way behind. So we are trying to bridging this gap. So I'm connected with many people like who are passed out from IITs and IITs BITS Pilani and having relevant experience in their field. So we provide 4 to 6 month courses to them. It's an online platform. So we train them with our experience. So it's not like that they have already studied the basic thing in the college itself. So we train them industry experience. So people like TCS, Infosys, they provide training courses to them when you join any company. So in our courses we provide those training which is like professional training, I can say. So our candidate don't have to take any training, and they can start their work in any startup. Because in a startup, like when somebody hire especially freshers or any candidate, they want people who can start work from the very first day. They don't have time and even money to train them. So in that way we are also helping them. So we are providing resources who are freshers and who are trained. So the startup don't have to train them. They can start from the very first day. Only the minimum guidance is required because they are the first time job seeker. So that's what we are building. सो जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उमंग जी कैन करेक्ट में अगर मैं गलत समझ रहा हूँ, तो उमंग उस गैप को फिल कर रहे हैं जहाँ पे आप क्वालिफाइड तो हैं किसी जॉब के लिए, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अभी आपको नहीं है। और अक्सर हम वो वाला जोक्स सुनते हैं, उस तरीके के मीम्स बहुत सारे होते हैं कि जब आप इंटरव्यू में कोई गया हुआ होता है और वो कहते हैं कि हमें तो क्वालिफाइड, वो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है, और वो कहता है कि जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो दोनों ही चीज़ें, वो गैप है, तो वो गैप फिल करने के लिए उमंग ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और यही हो रहा है, राइट? करेक्ट, या, है ना। और ये ऑब्वियसली वो लोग हुए जो कि उस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं टेक्निकली, यानी थ्योरेटिकली अगर उनके सीवी पे जाएंगे आप तो वो उसके लिए क्वालिफाइड हैं। लेकिन मोस्टली होता ये है कि जब हम उनको जॉब पे हायर करते हैं तो अब यहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती है, और ये एक बड़ा चैलेंज है जो हम लोग मीडिया में भी फेस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जब उनको इंटरव्यू करते हैं तो वो उन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ है, बैचलर्स, मास्टर्स या उससे भी ज़्यादा, लेकिन रियल मीडिया यानी प्रैक्टिकली किस तरीके की चीज़ें होती हैं और वो जो थ्योरी में जो उनको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो उनका यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, उसमें बहुत गैप होता है। तो उसको फिल करना पड़ता है हमें भी। और यहाँ ITV नेटवर्क में हमारा भी एक मीडिया इंस्टीट्यूट है, और उसको स्टार्ट करने के पीछे एक विजन यही है एग्जैक्टली कि हमें जिस तरीके के लोग चाहिए वो इंडस्ट्री से, वो हमें इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलते हैं, और उनको हमें इतना टाइम उनके साथ में ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। उससे अच्छा अगर हम ही उस एजुकेशन को इम्पार्ट करें जहाँ पे हम वो प्रैक्टिकलिटी को जोड़ सकें, क्योंकि अब वो जब पढ़ रहे हैं तो जो हमारे फाउंडर्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक उनका मैसेज है, वो कहते हैं कि क्लासरूम इन द न्यूज़ रूम। सो वो न्यूज़ रूम में ही हमने क्लासरूम बना दिया है, यानी अब जब पढ़ रहे हैं तो यू आर योर एजुकेशन, योर लर्निंग वाइल यू आर ऑलरेडी वर्किंग, या विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, उसी एनवायरनमेंट में है। तो सब कुछ आपको इससे अच्छा है तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हर इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं होगा, या हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उस गैप को फिल कर रहे हैं उमंग। उमंग, आपको किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं जब आप इस इनिशिएटिव को रन कर रहे हैं? तो मेजर चैलेंजेस अभी व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग दे डोंट नो कि हाउ मच टू रीड, हाउ मच टू स्टडी, एंड मतलब उन्होंने डिग्री ली हुई है, मे बी BCA, BTech, MTech, बट उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की, या टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी उनके पास नहीं है। सो हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आर एम इज़ टू हेल्प देम टू गेट जॉब एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स वाई हमने ड्यूरेशन भी बहुत कम रखी हुई है, 4 to 6 मंथ। सो उस 4 to 6 मंथ में दे रियली नीड टू वर्क हार्ड, बिकॉज उनको बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो उनको बेसिक भी क्लियर करना है। वी टीच फ्रॉम द वेरी बेसिक साइड, बट उनकी साइड से काफ़ी एफर्ट्स करने हैं। सो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एक चैलेंज ये है कि एक नॉर्मल माइंडसेट है कि 2-3 घंटे
पढ़ के काम हो जाएगा, बट इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज 4 साल या 3 साल जो आपने डिग्री थी उसमें आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, बट राइट नाउ आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ आर टीचर्स आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बट अब उनको एफर्ट्स अपनी साइड से डालने चाहिए। तो एक तो एफर्ट्स फ्रॉम द कैंडिडेट साइड में मिल रहा है, और दूसरा एफर्ट है कि अभी राइट नाउ देर इज़ नो वेरी मच हायरिंग गोइंग ऑन स्पेशली इन IT. So major courses we have in data analysis, business analysis, software development. So hiring are very less. So we are really trying hard to connect our students with with the HR professionals, but hiring are very less. Even though we have few candidates who are very much ready, but still lack of opportunities are there. We are pushing, and one of the another challenge that in startups there are few hirings, but the people in startup have mindset that I want somebody who already know the things. So it's very hard to convince them ki sir, our students are ready, you don't have to train them, just try them once, take the interview, and that's the major challenge. ठीक है, तो ये उमंग का पर्सनल व्यू है। डिस्क्लेमर हमारी तरफ से ये है कि हायरिंग नहीं हो रही है, जॉब्स कम है, तो इसमें ना हम इसमें इस पे हम उस पे कुछ कह रहे हैं, और ये इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ और है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक गैप और आप जो फिल कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, वो ये है कि वो जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान तो है, इससे कोई तो शक नहीं है। बहुत सारी ऐसी डिग्रीज लोगों को मिल जाती हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, या बहुत सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो वो एक बड़ा गैप होता है कि वो मजबूरी है उनकी, वो जिस शहर में है, जिस गाँव में है, वहाँ जो कॉलेजेस उनको मिले हुए हैं, वहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है, तो वो वही कर सकते हैं वो लेकिन काम के हिसाब से कितनी यूजेबल है, वहाँ पे एक बड़ा गैप होता है, और उसको आप वहाँ पे भी फिल कर रहे हैं शायद कि उनको उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है यहाँ पे। अब जब आप ये आपके कई साल की पढ़ाई जो है आपको कुछ एक महीने में ख़त्म करनी है, तो निश्चित रूप से कि एक क्रैश कोर्स है जहाँ पे पूरा रिविजन, पूरी चीज़ें आपको फिर से सिखाई जा रही, तैयार किया जा रहा है। क्या टिकट साइज होता है, किस तरीके की फी स्ट्रक्चर होता है, अगर कुछ ब्रॉडली बता। बेसिकली हम 2 मॉडल पे काम करते हैं। एक हम पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल पे काम करते हैं, वेयर वी चार्ज इनिशियली वेरी स्मॉल अमाउंट 10,000 विच स्टूडेंट कैन पे इन 3 to 4 EMI. It's basically for those students who are not able to pay amount. So we first train them, and then after the job they have to pay our fees. And the second model is like student who have money, who have capacity, financial capacity, they can pay us initially. So the ticket size starting from 40,000 to 80,000, depend upon the course and the duration of the course. Wow. तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं कि एक तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस तो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नोबल कॉज भी है कि वो बच्चे जो कि इस खर्चे को नहीं उठा सकते हैं, इस फी को नहीं दे सकते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन तरीका निकाला हुआ है कि वो किस तरीके से इस पढ़ाई को पूरा करके जॉब में जाने के बाद में जब सैलरीज मिलने लगे तब वो इसको पे कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर ये जो इस आज के इवेंट का या इस जो ऑर्गेनाइज किया है हमने ओकेजन, इसका जो पर्पस है वो ये है कि आप लोग आपस में भी समझिएगा चीज़ों को, और यहीं पे कहीं अगर कोई ऐसा सवाल निकलता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम निकलती है जो कि जिसका कि हम यहीं पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या आपस में मिल करके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करते रहिएगा। तो थैंक यू उमंग, थैंक यू।